जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली के, हर हर महादेव. Again, vlog. It's in English. I will do this reading in this vlog in full English. It's again for one of my friend in office. He asked me to do this reading. He requested me to do this reading. Topic is upcoming 1 year. Okay. So I'm shuffling the cards right now. So it's what will be his upcoming 1 year in aspect of his life, personal life, growth, job, success, and all this. It's a general simple reading. Please, how much it resonate, take that much. Rest of it you leave for other people. I'm taking 7 cards because I always wish to take 7 cards. Okay, I feel my kind of angel number is 7, so I always do reading from any pack of cards, only 7 cards. Okay, I'm taking 7 cards. 3 card I have taken. My friend name start with S. Okay, I'm not taking the name. Let's keep it secret only. For him, this reading upcoming 1 year. One card I'm seeing number of times. Okay, while shuffling it's appearing in front of my eyes, so I'm taking this card also. Okay, I have taken 7 cards. Let me do the reading right now. Okay. See, these are all tarot cards. If it is coming in this way, opposite, I will do the reading in that way only. Okay, in that aspect only. If it is coming in this way straight, I will do the reading in this way. This card came opposite, so I will definitely do the reading in opposite. What is the meaning of the card in terms of opposite if it comes? Okay. Okay. First of all, I would like to tell that while doing this reading, while I was shuffling the cards, this card appeared number of times. Okay, it's a death card, so try to understand what is the meaning of this card. Okay, it do not resemble death of any human. It symbolizes death of a phase. uh, the person whom I'm doing this reading, I'm telling you, okay, I don't know about your life or personal what is going on in your life, actually personal what's going on in your life. Something is coming to an end in your life. Okay, any bad phase of life, ऐसा कुछ ख़राब टाइम, ऐसा कोई कुछ चीज़ जो बहुत टाइम से आपके लाइफ में चल रहा था, जो आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा था, जो एनीथिंग इन लाइफ विच यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, maybe you were stuck in your life for long time. It can be months and years. You are struggling, you are stuck in your life. Okay, it is not only job. It is not only job, I'm telling truly. The card means in your personal life ऐसा कुछ बहुत महीनों या सालों से चल रहा है जो आपको बहुत तकलीफ़ देता है. फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग, जिससे आपको मेंटल इफ़ेक्ट होता है, फिज़िकल इफ़ेक्ट होता है, जो बहुत सालों से हो सकता है. आई एम जस्ट एज्यूमिंग. ओके, बहुत सालों से जो जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो. अगेन आई एम टेलिंग, इट इज़ नॉट ओनली जॉब. आई एम टेलिंग यू दिस कार्ड, इट इज़ नॉट ओनली जॉब, इट इज़ अबाउट योर पर्सनल लाइफ. ऐसा कोई ख़राब फेज़, ख़राब टाइम वो ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द. ठीक है, वेरी ट्रूली आई एम टेलिंग. जब भी ये कार्ड आते हैं, वेन एवर दिस कार्ड कम्स इन रीडिंग, जिसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ख़राब फेज़ ऑफ लाइफ, कुछ ना कुछ ऐसा ख़राब सिचुएशन लाइफ का जो बहुत सालों से चल रहा है, वो एंड हो रहा है और एक नया साइकिल शुरू हो रहा है. डेथ, दिस कार्ड मीन्स एंड ऑफ ए वेरी बैड फेज ऑफ साइकिल एंड बिगिनिंग ऑफ ए न्यू फेज ऑफ साइकिल. मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या चल रहा है. मतलब अगेन आई एम सेइंग, इट्स नॉट ओनली जॉब. इन योर पर्सनल लाइफ
anything, it can be anything, okay, not only job, I'm telling you. That struggling, that fighting, that struggling, that worry, tension, uh, that mental pressure, that thing, कोई इंसान हो सकता है, इट कैन बी ए ह्यूमन, इट कैन बी एनी सिचुएशन ऑफ लाइफ, एनी फेज ऑफ लाइफ, एनी टाइम पीरियड ऑफ लाइफ जो एंड होने वाला है, जो एंड होने वाला है, और एक नया लाइफ का फेज शुरू होने वाला है। डेफिनेटली ये होगा। ये कार्ड आया है मतलब जल्द होगा, ये टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कि यू फेल्ट दैट समथिंग इज चेंजिंग इन योर लाइफ, the same life, the same life, the same monotonous life, that something same for long years which is going on in your life, which is not good, which phase is not good, that is going to come to an end, which you know, I exactly cannot tell right now. Anything it can be, again I'm saying, it's not job only. एनी सिचुएशन, एनी ह्यूमन, एनी परिस्थिति हो सकता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो बहुत टाइम से आप लड़ रहे हैं लाइफ में खुद अकेले, वो एंड हो रहा है। बहुत जल्द वो फेज एंड होगा, इसलिए डेथ कार्ड आया है, और एक नया फेज शुरू होगा। ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर ऑफ दैट एंड माई वर्ड्स विल मैच, आई बिलीव दैट। ओके, ये एक मैसेज है पहला कार्ड में। जो उल्टा बोल रहे थे ना, ये कार्ड का मतलब है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये उल्टा आया है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कभी ये उल्टा आया है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू, जिसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि लाइफ के कारण, ड्यू टू लाइफ, ड्यू टू स्ट्रगल, ड्यू टू लाइफ सिचुएशन, लाइफ सिनेरियो, ड्यू टू योर लाइफ, you understand your life very well, what's going on in your life, confirmation, what's going on in your life. Sometimes it happens due to continuous years after years, same struggle, same worries, same tension, same overthinking, same problem, same struggle, years after years. Slowly we detach ourselves from God, because we know that our life cannot change, our life will be the same the whole life. मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई कैन फील दिस काइंड ऑफ एनर्जी बाय दिस कार्ड, जिसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। कभी ना कभी आपके मन में अबाउट गॉड वॉज समथिंग, सम टाइम इट कम्स कि you believe God, you do puja, you do this and that, rituals and all this about puja and all this. Still, why your life is not like that what you expect to be life. You believe God very strongly, you do many rituals in your life very strongly. That's okay, that's true, that's very true. But sometimes you get little depressed, little down, like feelings, in terms of feelings, like what is going on in life, I'm doing all these things, I believe this much, why life is not changing as it should be. Sometime these feelings come in your mind, I'm definitely sure of that. And see, this card means very powerful, like high priestess. She's a, it can be priest, it can be priestess also, it's a high priestess, a god who is connecting the heaven power with earth power. An angel or a god who is responsible for connection between the universe and the earth. Whatever we pray, whatever we do, puja, rituals and everything, she hears, she takes our prayers and she gives it to the universe or the heavenly power god. She is a connector. She is like the connected between the Almighty God and the earth people. This is the meaning of this card. The people who get this card while reading straight card, when it comes, it means with that person there is a powerful God energy who is protecting him or her, definitely. But it come opposite, that means definitely you are protected, you are under God guidance, everything, you do puja, rituals, everything. But sometime in some case, in some situation, you feel like the thing which I said, you do everything, you do every puja, everything, but still
why your life is like this feeling sometimes comes and get triggers in your mind. It comes, okay. And one more thing I'm telling you, because this card came opposite, please ensure that whatever puja you are doing, whatever rituals you are doing, whatever you are doing, fasting or anything, uh, sit in a place, think properly. You are doing all thing in a proper way too, all the rituals in a proper way. Like, since the card came opposite, please ensure that whatever puja, again I'm saying, whatever puja rituals you are doing, anytime, whenever you do, make sure all the rituals are in a proper way you are doing or not. Okay. Frankly, I'm telling you, first you should be healthy, fit, your body, mind, and then only we must do rituals and everything. That's important first. God never wants us to be sick and do the ritual. This card came opposite, that's the reason I'm telling you. That's the reason. Two things. First of all, whatever puja and rituals you are doing, you please ensure all the methods which you follow in rituals or any puja, it's you are doing in a proper way or not. That one thing. And secondly, uh, be a little careful, like under whose guidance you are doing these rituals, or uh, who is helping you, guiding you to do any puja or rituals, any pandit or any like that. I'm telling careful in the way, this way ki, uh, be keep your eyes and ear open and mind open, okay, while doing any puja or ritual. I'm getting this energy. That's the reason I'm saying you this. Your ritual is correct, okay, everything is fine, okay, still some energy I'm feeling, I need to say this. Little be more sensitive and cautious while puja or while rituals and anything, because this card came means definitely you are under protected, under guidance of God, because this card means high priestess card. But it came opposite means maybe something is going on in your life that is creating some obstacles, or what should I say, obstacles, not allowing the full fledged that godly power to enter in your life to help you out to move ahead in life. Please try to understand what I'm saying. Something is going on in your life, um, in aspect of your puja and ritual. Something is going on. I'm not telling wrong anything, but something is going on that is not allowing you to uh, get the full blessings, full fledged blessings from that powerful God, because something is there, some obstacles is there, maybe in the rituals, maybe in something, okay, that is not, for that reason you are not able to uh, allow that powerful high power to enter in your body, mind and soul. That is the main thing I'm getting these vibes, okay. Very simply again I'm saying, आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, पूजा पाठ करते हो, रिचुअल्स करते हो, फास्टिंग करते हो, उस पर थोड़ा और कॉन्शियस हो जाओ, थोड़ा और ध्यान दो. कुछ ना कुछ ऐसा गलती नहीं, कमी, शायद कुछ प्रोसेस हो सकता है, कुछ मेथड हो सकता है, कुछ आपसे नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है जिसका आपका ज़रूरत है रिचुअल्स में, जिसके लिए आपका कुछ ब्लॉकेजेस है. पावर अचीव करने का भी एक तरीका है, एक मेथड प्रोसेस है, ठीक है, उसमें ध्यान दो. इट्स अ डिफरेंट रीडिंग फ्रॉम दिस कार्ड आई एम टेलिंग यू टुडे, ओके. इट केम ऑपोजिट, सो आई कीप दिस ऑपोजिट ओनली. आप जो भी भगवान को मानते हो, उसका फुल फ्लेजेड ब्लेसिंग सिर्फ नहीं, पावर अपने अंदर ले आने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, पूजा करते हो, रिचुअल्स करते हो, फास्टिंग करते हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसा मिसिंग हो रहा है. गलती नहीं, आई विल नॉट से, कुछ मिसिंग है आपके पूजा या रिचुअल्स में, जिसके लिए हाई प्रीस्टेस ऐसा कोई एनर्जी आपको पूरा फल नहीं दे पा रहा है. कुछ तो है जिसके कारण आपको वो पावर का जो फल होता है, जो हाई डिवाइन पावर का जो एक्सेसिव फल इंसान पा सकता है, उसमें आपका कुछ कमी है, कुछ हो रहा है, जिसके कारण आपको पूरा वो
पावर एज ए रिजल्ट वो नहीं मिल रहा है लाइफ में, इसीलिए आप 10 पा आगे कदम बढ़ाते हो, 4 पा पीछे चले आते हो. समथिंग इज गोइंग ऑन इन दिस लाइक दिस इन योर लाइफ. यू गो अहेड 10 स्टेप्स इन लाइफ, इन एवरीथिंग. अचानक ऐसा कुछ हो जाता है कि आप 5 कदम पीछे चले आते हो. ऐसा कुछ हो जाता है नेचुरल, ऑटोमेटिकली. ठीक है. सो वट एवर आई एम सेइंग राइट नाउ अबाउट whatever I feel right now while doing this reading, please take it generally, normally. How much it resonate, take that much only. Okay, I feel this energy while doing this reading. See, कार्ड उल्टा आया है, ये कार्ड भी. ठीक है. अगर सीधा करें इसको, शायद हो सकता है कुछ पास्ट में, बहुत ज़्यादा पास्ट में नहीं, आप लाइफ में ऐसा कुछ फेज़ में थे जहां आप खुद को सबसे अकेले कर लिए थे, सबसे लोनली कर लिए थे खुद को, और आप अकेले लाइफ लीड कर रहे थे, किसी से उतना बात नहीं करते, किसी से उतना रिलेशनशिप नहीं रखते. एक फेज़ ऑफ लाइफ आपका पास्ट में था. पास्ट में कार्ड उल्टा आया है. पास्ट में आपका एक फेज़ ऑफ लाइफ था जहां आप फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन हो सकता है, धोखा खाए, ऐसा कुछ हो सकता है किसी एस्पेक्ट में. आई डोंट नो एग्जैक्टली, किसी एस्पेक्ट में हो सकता है आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था लाइफ, फ्रॉम ह्यूमन, कि आप खुद को बहुत अकेले कर लिए थे एंड आप अकेले रहना पसंद करते थे. ऐसा कुछ एनर्जी मिल रहा है. लेकिन कार्ड उल्टा आया है, मतलब अभी ऐसा फेज नहीं है आपके. राइट नाउ यू आर नॉट हैविंग दैट बैड फेज ऑफ लाइफ. राइट नाउ whatever I'm seeing you in the office, you are making all of us laugh, enjoy, fun. You fun yourself, we get enjoy and fun, laugh, work together. I get your vibe this. And मुझे ऐसा feel हो रहा है, I'm saying you this, okay? You make us laugh, smile, fun in workplace. You only help us to laugh and smile. So मुझे ऐसा लग रहा है, बोलना चाहिए मुझे, जब इंसान ऐसा कोई फेज में रहता है ना, बहुत टाइम से खुद को अकेले कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इंसान को अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत धोखा मिला है लाइफ में, बहुत ठोकर खाए हैं, बहुत कष्ट मिला है लाइफ से, इंसान से, अच्छे लोगों से, खुद के क्लोज पीपल से धोखा मिला है, कष्ट मिला है, तो इंसान धीरे धीरे एक अलग इंसान बन जाते हैं. सो आई फील, मुझे ऐसा फील होता है आपको देख के कि डेफिनेटली कुछ चीज़ ना मिलने का कुछ दर्द है आपके अंदर. डेफिनेटली ऐसा कुछ है. लाइफ में आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, ऐसा कुछ देखे हैं, ऐसा कुछ सीखे हैं. मेनली यू हैव लर्न समथिंग इन योर लाइफ. जो सीखे हैं आपने लाइफ से, पास्ट में, ज़्यादा पास्ट में नहीं, रिसेंट पास्ट में, जो आपको आज आप जैसे हैं वो वैसे आपको बना दिया है. ठीक है. आप लोगों को हंसाते हैं, आप लोगों को बहुत लोगों के साथ मज़ाक करते हैं, फ़न करते हैं, हंसाते हैं. क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि हंसना कितना ज़रूरी है और ख़ुद को हंस के हेल्दी रखना कितना ज़रूरी है. क्योंकि आपको पता है, यू नो दैट विदाउट स्माइल, विदाउट लाफ, विदाउट फन, हाउ लाइफ वाज वंस अपॉन ए टाइम. I feel so like that. Okay, this kind of energy I'm getting. सिंपल बात, भगवानी हम कभी कभी ना कुछ नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनेरियो, क्राइसिस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, कुछ गलत लाइफ में हो जाते हैं. क्योंकि हम लोगों को एक प्रोसेस होता है तैयार करने का. ओके, ऐसा ख़राब इंसान हो सकता है दुनिया में, ऐसा ख़राब टाइम लाइफ में हो सकता है, ऐसा ख़राब सिचुएशन लाइफ में आ सकता है, ऐसा खराब चीज़ हो सकता है लाइफ में. क्यों आते हैं लाइफ में? ताकि वी अंडरस्टैंड लाइफ एंड दिस अर्थ इज़ नॉट ओनली ऑफ हैप्पीनेस एंड आनंद. ऐसा नहीं है. वी हैव टू नो बोथ एवरीथिंग, गुड एंड बैड ऑफ ह्यूमन लाइफ, गुड एंड बैड ऑफ दिस अर्थ एंड सोसाइटी एंड नॉर्मल लाइफ. ओके, सो दिस इज़ द साइकिल. सो हमेशा याद रखना कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा टेंशन, थोड़ा ओवर थिंकिंग, थोड़ा लाइफ में थोड़ा हर जाना. ठीक है. लाइफ में थोड़ा हर जाना, लाइफ में थोड़ा परेशान होना, लाइफ में थोड़ा धोखा खाना, थोड़ा गिर जाना, टू सम एक्सटेंट इसकी ज़रूरत है.
we need this. Okay, otherwise we will not able to grow up in our life. We can never grow up unless we get rejected, unless we get hurt in mind, small थोड़ा भी, unless we will not learn the lesson of life. Okay, we will not be able to learn the lesson of life. So हर इंसान के लाइफ में अप डाउन रहता है, हर इंसान के लाइफ में दुख कष्ट दर्द सब कुछ मिला जुला के रहता है. ठीक है, मिला जुला के रहते हैं. और ऐसा कोई नहीं है रिच पीपल या पुअर पीपल और मिडिल क्लास पीपल, ऐसा कुछ नहीं है. सभी लोगों ने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखा है, देख रहा है, आगे भी देखेगा. पैसा है फिर भी दुख कष्ट रहेगा, पैसा नहीं है, कम है, मीडियम है, फिर भी दुख कष्ट रहेगा हर इंसान के लाइफ में. Okay, I'm getting this energy from this card. Next I'm doing एक मैजिशियन का कार्ड आया है. इस कार्ड के हिसाब से, आपके रीडिंग के हिसाब से एक चीज़ आपको गाइड करते हैं. मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे एनर्जी फील हो रहा है, इसे बोल रहे हैं. ठीक है, आप ऐसे व्यक्ति हो, यू नो हाउ टू मैनेज एनी सिचुएशन. मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके अंदर एक क्वालिटी है, एक नेचर है कि आप किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन को मैनेज करके, सब कुछ ठीक ठाक करके आगे बढ़ा लेते हो उस परिस्थिति को. यू हैव दिस क्वालिटी एंड नेचर. इफ एनी सिचुएशन कम्स टू योर लाइफ राइट नाउ, अभी के लिए हम बोल रहा है, पास्ट में ऐसा कुछ लाइफ में आपके हुआ, आप ऐसा कुछ देखे, ऐसा लाइफ से कुछ सीखे, लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस हुआ आपका, या कुछ इंसान ने आपको ऐसा कुछ किया आपके साथ, लाइफ एक्सपीरियंस गुड एंड बैड आई एम टेलिंग. ओके, आपको बहुत कुछ सिखा दिया अबाउट ह्यूमंस, अबाउट लाइफ सिचुएशन एंड परिस्थिति एंड ऑल दिस. सो एक क्वालिटी हम बता रहे हैं, ये मैजिशियन का कार्ड है. इट्स अ पावरफुल पर्सन हु इज कनेक्टिंग अगेन द यूनिवर्स एंड द अर्थ. This hand is pointing towards the terrestrial earth, this is pointing towards the heaven, universe, between middleman, connecting both. Okay. So I'm telling you, you have this quality. Okay, you can manage and overcome and go ahead in life. Simple, I'm telling you have this nature and quality. It's very powerful. किसी भी अप्स एंड डाउन परिस्थिति में, किसी भी हालत में आप उस परिस्थिति को मैनेज करके, ओवरकम करके आगे बढ़ जाते हो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल नेचर ऑफ यू, आई एम टेलिंग यू. ओके, और यही नेचर आपको आपके हर लाइफ के परिस्थिति में आगे लेके जाएगा. ठीक है. सी अगर आप मटेरियल कुछ वेल्थ चाहते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कार्ड के हिसाब से, हो सकता है कि आपका कोई मटेरियल ख्वाहिश है, एक 4 व्हीलर या फिर एक फ्लैट, ऐसा कुछ मटेरियल ख्वाहिशें है. ओके, मटेरियल कोई ख्वाहिश है. और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, और उसके साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है. ठीक है, मटेरियल विश एंड मनी प्रॉस्पेरिटी. ओके, सी मटेरियल विश विल बी, आपके मन में मटेरियल मतलब एक्सपेंसिव. ओके, एक्सपेंसिव कार हो सकता है, एक्सपेंसिव फ्लैट हो सकता है, एक्सपेंसिव कुछ खरीदने का चीज़ बहुत सालों से आपके अंदर है. यू रियली विश टू बाई सम एक्सपेंसिव थिंग. सिर्फ एक्सपेंसिव ही नहीं, कार और फ्लैट, ऐसा कुछ फील हो रहा है. ओके, मुझे इसीलिए आया है. देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी while doing this reading, whatever you need in your life in terms of money, if you work then only you will get money. If you get money, save money, then only you can buy car and flat and everything what you need. But you can, but definitely it will be, but I'm trying to guess the time period. Okay, it will take some time. Okay, it's not so easy like for you, I'm telling you very truly.
Within 1 year you said the reading. Within 1 year, right now what you are doing job, um, you will do continue, but huge money or huge position, status, huge position in terms of job and huge money and everything, um, that will be that can be not within 1 years, definitely not within 1 years. Within 5 6 years, okay, very truly to say, within 5 years you take the boundary, but not within 1 years. But definitely material wish, money success will come, okay. Within 1 year, you can have increment salary, you can save money, this much I can say. Or within 1 year you can buy something not very expensive, but some good thing you can buy. But frankly to say to you, uh, the type of salary which you want, the type of position in job which you want, which I can feel right now with the energy, it's not within 1 years. If it is within 1 years, it's very well and good, I pray for that only. But it may take little time, okay. I would love to say within 4 5 years, not before that, okay. Matlab, huge increment in salary, a very good position, it will take time, 3 to 5 years, like that, okay. I'm not telling that within 3 or 5 years you will get 60,000 2 lakh rupees salary or like that, but right now the position where you are, the type of salary you are getting, the type of job you are doing, within 1 year थोड़ा increment, थोड़ा improvement, like that. Like within 3 to 5 years, definitely you will be in a very improved, better position and salary within 3 to 5 years, not within 1 year, okay. Within 3 to 5 years, that's definite. Once more I'm saying one thing to you, आपके पर्सनल लाइफ में, जॉब आई एम नॉट टेलिंग, आपके पर्सनल लाइफ में ऐसा कोई स्ट्रगलिंग फेस जिसको लेके आप स्ट्रगल कर रहे थे बहुत टाइम से, हो सकता है इट कैन बी ईयर्स ऑल्सो, कुछ भी लाइफ का एनी सिचुएशन और सिनेरियो, वो ख़त्म होने वाला है, वो ख़राब फेज एंड होने वाला है, ठीक है। और एक नया कुछ शुरू होने वाला है आपके लाइफ में, कुछ नया कुछ शुरू होने वाला है। प्लीज़ कीप योर आईज ओपन, आईज ईयर ओपन, माइंड ओपन, ट्राई टू ऑब्जर्व, लुक एंड ट्राई टू कैच द वाइब्स, ओके। आपके पर्सनल लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है। इट कैन बी एनीथिंग बट गुड, वेरी गुड। इफ़ यू थिंक अबाउट लव और समथिंग, इट कैन बी ऑल्सो, आई प्रे फॉर दैट ऑल्सो। बट कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ नया डेफिनेटली शुरू होने वाला है, ठीक है। और देखिए, आप एक और गाइडेंस, आपका लाइफ में ऐसा परिस्थिति एक टाइम था, आपने ऐसा परिस्थिति से बहुत कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू कीप द लेसन्स इन योर माइंड, ओके। लेसन्स इन योर माइंड कि ऐसा परिस्थिति हो सकता है लाइफ में, ऐसा परिस्थिति में लोग हमारे साथ, आई एम नॉट टेलिंग यू टू रिमेंबर द नेगेटिव थिंग्स, बट अच्छे टाइम में, ख़राब टाइम में जो भी हम सीखते हैं, वी शुड टेक द पॉजिटिव थिंग एंड कीप इन माइंड एज ए लेसन, ताकि दोबारा लाइफ में ऐसा ख़राब सिचुएशन ना आए। जो गाइडेंस हमने की है हाई प्रीस्टिस के कार्ड के हिसाब से उल्टा आए, प्लीज़ चेक एंश्योर जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, रिचुअल्स करते हैं मेनली, वो ठीक ठाक हो रहा है या नहीं, या फिर थोड़ा सेंसिटिव और कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि प्रोटेक्शन ब्लेसिंग्स तो है, लेकिन कुछ ऐसा कुछ है, कुछ कमी, आई एम नॉट टेलिंग रॉन्ग, कुछ कमी हो रहा है आपके पूजा या रिचुअल्स में, जिसके कारण आपका जो फ्लो होना चाहिए लाइफ में स्पीडली, वो थोड़ा होल्ड हो गया है, थोड़ा होल्ड हो गया है, ठीक है। ये एक बात है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो मैंने बताया,
you can manage and overcome any situation or anything. Keep that, that's a power of you, okay? किसी भी परिस्थिति सिचुएशन को इजीली मैनेज करके हैंडल करके आगे बढ़ जाना, सबको लेके आगे बढ़ना, दैट्स अ पावर. दिस पावर विल बी वेरी, आपको काम आएगा इन फ्यूचर में, आपके करियर में, जॉब में, ओके? और आप सबको हंसाते हो, मेक फन विथ एवरीवन, मेक पीपल लाफ, स्माइल, ये भी एक गॉड गिफ्टेड पावर है. इसको हमेशा रखना लाइफ में, ताकि आप जहाँ रहो, वेर एवर यू आर, you create a positive ambience and aura in that place among all the other people. That helpful for everyone, for you also, for everyone also. मटेरियल गेन होगा, मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है, बहुत जल्द आपको कोई मटेरियल गेन होने वाला है. मटेरियल गेन मतलब कुछ आप खरीद सकते हो, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, ऐसा कोई एक्सपेंसिव, ठीक है, एक दो हल्का चीज़ ना, बहुत कुछ एक्सपेंसिव मटेरियल गेन होगा आपका, या कुछ खरीदोगे, किसी ऐसा परिस्थिति सिचुएशन हो जाएगा कि आप कुछ खरीदोगे, ठीक है, गिफ्ट भी हो सकता है. सो एज आई सेड, विद इन 1 year you have to keep this all these things in mind, okay? 3 to 5 years लगेगा to be right now in job or career. If you are out of 10, if out of 10, I'm telling you, out of 10, if I give you marks, after within 3 or 5 years, you will be, out of 10 I can give, you will be 7 or 8, you will be 7 or 8. ऐसे थोड़ा ध्यान रखना. चलिए देखते हैं टॉप ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक में क्या है. यू सेड योर तुला राशि, डेफिनेटली द मून कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में. बॉटम ऑफ द डेक मतलब है, डेक मतलब इसको डेक बोलते हैं, लास्ट में जो कार्ड रहता है बॉटम ऑफ द डेक बोलते हैं. द मून कार्ड आया है, ठीक है. इसका मतलब है समथिंग इज रिलेटेड विथ योर थिंकिंग, विथ योर साइकोलॉजी एंड ऑल दिस, ओके? try to take moonlight in your body, okay? Like in Purnima, full Purnima, give puja, try to take the moonlight, open moonlight in your body. That will be helpful for you. And मुझे ऐसा पता फील हो रहा है, एनर्जी फील हो रहा है इस कार्ड के हिसाब से. आप क्या बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, या फिर मुझे ऐसा नहीं लगा है कि आप जल्दी गुस्से में हो जाते हो, बट समथिंग विथ रिलेटेड विथ योर मेंटेलिटी और साइकोलॉजी, ओके? कुछ है, खराब नहीं है. वट एवर यू थिंक while working or normally, you try to focus on that you're thinking, okay, little bit. It's okay, but I think you need to rethink something. आप आपके लाइफ के बारे में, खुद के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जो सोचते हो, जैसे जिस तरीके से आप सोच के आ रहे हो इतना सालों से, वही सोचो, लेकिन थोड़ा स्टाइल चेंज करो सोचने का. किसी भी चीज़ को पाने के लिए, अचीव करने के लिए, आप जैसे सोचते हो, थोड़ा टाइप ऑफ थॉट और थिंकिंग थोड़ा चेंज करो. समथिंग यू नीड टू फोकस ऑन योर थिंकिंग एंड साइकोलॉजी. समथिंग इज रिलेटेड विथ योर साइकोलॉजी. आपने कभी महसूस किया है कि हैव यू फेल्ट एनी टाइम इन फुल मून? यू कैन राइट इन माई कॉमेंट वेदर यू गेट वेरी एंग्री और वेरी डिप्रेस्ड और वेरी हैप्पी in full moon Purnima. Something is connected with your moon, okay? Moon is related with our mentality, thoughts and psychology. Moon का कार्ड आया है, तो चंद्रमा, द मून गॉड. आपका मन बहुत चंचल है, okay? Your mind is very going here and there, here and there. You look quiet, but your mind is always going here and there, here and there, like so. That thing you need to control a little bit of, okay? I feel that. आपको मतलब खुला जगह, सुनसान जगह, वेरी क्वाइट प्लेस, नाइट टाइम, पूर्णिमा, फुल मून, वेरी क्वाइट प्लेस, सो मच पीपल नहीं है, जहाँ उतना लोग नहीं है, तो शांत परिवेश आपको अच्छा लगता है. मतलब
नाइट, मुझे ऐसा फील हो रहा है यू लव नाइट मोर देन डे, यू लव नाइट मोर देन डे. I feel so. Okay, I'm getting this energy. You like to spend very you you love to you love to be with the people, enjoy with the people, work with the people, all okay. But you also like to spend uh, some time quiet alone where no one is there. I feel you are very choosy whom you talk with, whom you make friends, very very choosy. Okay, and you don't like much talking, you don't like much blabbering and all this and talking and all this. You want to be very less person, you love to be less talk person. Definitely you like night, definitely. Okay, I think you are adventurous, like you love to be spent in night in a forest bungalow. You want to be an adventurous, you love to travel, like your traveling and adventurous is little different, like spending night in a bungalow in the forest, hearing the voice of the animals, very mysterious, little haunted, little spooky, this kind of feelings you love night rather than day. You have a adventurous and traveling mind also, but due to work and all scenario you don't get the scope. You enjoy very choose companion, friends and all these. Okay, these vibes I'm getting. Top of the deck mein this card came. Definitely you will have one day money, lots of money. You will be able to help your family, everything, whatever you want to help. You want to help your family more with money, finance, but right now that level it's not possible for you, but one day you can. And definitely you will have a very good family, like marriage and everything. You will have a very very good family. Okay, you will be able to support your parents, your house members, your wife, your children very well financially, that definitely. But I'm sure you are a very you are a traveler, adventurous, but I don't know to what extent, but you sometimes feel you want to travel and explore and adventure, but definitely you like night much than day. You like the vibes of the quiet night, full moon night, quiet night and all this. I'm getting these vibes. Okay, um, okay, this reading I did, let me see what comes from Shiva oracle cards. Okay, Har Har Mahadev, it comes for you in Shiva oracle cards. I will take 7 cards, 1 cards I have taken. Mahashivratri, love and harmony await. You will get a very good life partner. Okay, it's a card of Mahashivratri, love and harmony await. Love and harmony is awaiting, is waiting for you. Okay, a very good life partner is waiting for you. I don't know, do you do Shivratri? Do you give water on Shivling in Shivratri? If you do puja in Shivratri, do that. Okay, uh, give water on Shivling if it is possible on every Monday. Try to do Shivling puja in a very simple way in your house. Okay, like a diya, lit a diya, and then a dhoop and some prasad and water, and pour water on Shivling. Give Shivling. Okay, do Shiv puja in a very simple way in your house on Monday, every Monday. And Shivratri you must do. uh, it's this card is promising you with new love, with new relationship with your soulmate. Okay, this is promising you with new love, new relationship with your soulmate. Marriage card, you can say it's love relationship card, but try to do Shiv puja. Okay, it's a card, it's written Mahashivratri, love and harmony await. The auspicious occasion of Mahashivratri brings with it the promise of new love and the harmonization of your relationship with your soulmate. Maybe your soulmate is very close to you. Okay, it's coming, she is. I'm getting the vibes like that. Har Har Mahadev. Let me see next card.
rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes. Confirmation. Whatever whatever you feel, see, try to it's a card of rebirth, correcting your mistake. It is the right time to accept your mistake and put your effort in correcting those mistakes instead of regretting. लाइफ में अगर ऐसा कुछ पास्ट में, रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसके लिए आपका लॉस हुआ है कुछ, आप रिग्रेट मत करो, उससे कुछ सीखो. अ वेरी स्ट्रॉन्ग चैनल वाइब्स आई एम गेटिंग वाइल डूइंग दिस रीडिंग. आपके लिए जो ये रीडिंग बोले है, आप लाइफ में जो भी धोखा खाए या जो भी प्रॉब्लम आपने फेस किया है, रिग्रेट मत करो. हो सकता है कि आपके मन में ना रिग्रेटिंग का फीलिंग ज़्यादा है कि मेरे इस गलती के लिए हमने ये फेस किया, हमने ये मेरा लॉस हुआ. ये रिग्रेटिंग मत रखो मन में. ऐसा एनर्जी आई एम गेटिंग आपके मन में. आपने जो जो मिस्टेक लाइफ में किए हैं उसके लिए आपका एक रिग्रेटिंग, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेटिंग फीलिंग्स है बहुत टाइम से. सबके मन में होता है ऐसा. तो महादेव का मैसेज है कि रिग्रेट मत रखो, एक लेसन था, ऐसे ही मन में रख के आगे बढ़ जाओ. करेक्टिंग योर मिस्टेक, नॉट रिग्रेटिंग, एंड इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक. Again I am saying, if we don't do mistake, we are all humans. If we don't do mistake, if we don't fall in life anytime, how we can learn to understand life situation scenario, to understand earth, to understand how to get success in life? We have to get pain. That's normal. We have to get pain. Again I am saying, हम बहुत सारे व्लॉग में बोलते हैं, अच्छे टाइम में, गुड टाइम में, वी गो विद द फ्लो ऑफ द गुड टाइम. एंड गुड टाइम जब चलता है लाइफ में, व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग गुड, राइट, ओके, वी कैन नॉट फील मेनी थिंग्स. वी जस्ट फील द फ्लो ऑफ द गुडनेस. दैट इज गुड, दैट इज बैड, दैट इज नॉट गुड ऑल्सो. आई विल नॉट से बैड. when life goes ups and downs, problems, tensions, then we understand very well what is life. But when it's a good time, then we ignore many things. We just love to enjoy the goodness, what's going on, recent goodness. Okay, so be alert. Every vlog I'm saying, always, any time of life, we must be very alert and conscious about our whatever going on in our life, situation, scenario, people surrounding us, whom we are talking with, relations whom we have. We should always be conscious and little careful. Okay, next card is stillness, external forces. A very important card of Shiva came, stillness. Okay, स्थिरता. अगर आपके लाइफ में आप बहुत सालों से फील कर रहे हैं कि आपके लाइफ एक जगह में स्टिल है, आप खुद स्टिल हो गए हो, मतलब खुद खड़े हो एक जगह पे, अब पूरा स्टिलनेस है, इसका एक पॉजिटिव रीज़न है. ठीक है, एवरीथिंग कम्स इन राइट टाइम, बिफोर नेवर कम्स. जो चीज़ बहुत लेट में आता है वही लाइफ में पूरा लाइफ तक टिकता है. जो हरी में आता है, चांसेस होता है उसका ज़्यादा जल्द ख़त्म होना. ये एक नॉर्मल लॉ ऑफ यूनिवर्स है, सभी हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं लाइफ में. वो लव हो, प्यार हो, कोई इंसान हो, कोई प्यार हो, कुछ भी हो, परमानेंट थिंग कम्स लिटिल नॉट मच लेट इन लाइफ. ओके, तो महादेव का मैसेज यही है कि अगर आप फील कर रहे हैं कोई भी चीज़ लाइफ में, वो नौकरी हो, नौकरी में एक परमानेंट जगह, नौकरी में इंक्रीमेंट, नौकरी में एक हाई पोजीशन, या रियल सच्चा प्यार मिलना, या फिर एनी गुड थिंग, एनी यू वांट टू बाई अ फ्लैट, बंगलो और कार, मनी, सक्सेस, एनीथिंग, अगर आपको बहुत डिले हो रहा है तो डेफिनेटली, या आप फील कर रहे कि आपके लाइफ बहुत सालों से एक जगह पे ही स्टक है, एक ही बात सोचते सोचते ईयर्स, साल गुजर रहे हैं, तो डोंट गेट सो पैनिक एंड डोंट कंप्लेन अबाउट गॉड. अगर डिले हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है. जो स्टिलनेस है, जो स्टिलनेस है, दिस कार्ड एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेइंग calm एंड composed. हर परिस्थिति में बहुत शांत रहना चाहिए, बहुत काल्म होना चाहिए, बहुत कंपोज्ड होना रहना चाहिए, ताकि एक्सटर्नल जो फोर्सेस है वो आपको धक्का दे के मार ना दे या गिरा ना दे. अगर कोई भी हम लोगों को कोई गलत बोलता है, कुछ गलत खराब बोलता है, हमारा कोई दोष भी नहीं है उसमें, गलत तरीके से बिहेवियर करते हैं, गलत तरीके से बिहेवियर करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, अगर हमारा कोई दोष भी नहीं है उसमें,
वी शुड, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को वहाँ से हट जाना चाहिए, उन लोगों से दूर रहना चाहिए। जितना बात हम रिप्लाई देंगे, जितना जितना रिप्लाई देंगे, झगड़ा बढ़ेगा। सो जो खराब हमें बोल रहा है, जो हमें जानबूझ के खराब बोल रहा है, हमारे साथ खराब व्यवहार कर रहा है, ऐसा परिस्थिति हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। लाइफ के हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में हम लोगों को बहुत बहुत कूल रहना चाहिए, बहुत काल्म रहना चाहिए, बहुत कंपोज रहना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ लाइफ ऑल्सो आई एम सेइंग, इफ इट इज गेटिंग लेट, डिले, उसके लिए कुछ भगवान का कोई प्लान है, कौन सा टाइम में क्या देगा आपको, बिफोर दैट वी कैन नेवर गेट। इफ यू ट्राई टू गेट ऑल्सो, ट्राई टू मिंगल ऑल्सो, वी विल गेट द रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग पर्सन। बिलीव इन द टाइमिंग ऑफ लाइफ, ओके। द करंट स्टिलनेस, आप जो बहुत टाइम से जो एक आपका जीवन आप फील कर रहे हो कि रुक गया है, स्थिर हो गया है, स्टिल हो गया है, दिस करंट स्टिलनेस पीरियड यू आर एक्सपीरियंसिंग इज अ प्रीकर्सर ऑफ द अपकमिंग ट्रायल्स दैट लाइज अहेड, is the precursor to the upcoming trials that lies ahead. आपको किसी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है, you are being prepared for something big, okay? बहुत सालों से स्ट्रगल क्यों करते हैं, बहुत सालों से इतना दुख, कष्ट, दर्द क्यों झेलते हैं हम लोग, क्यों पेन सफरिंग्स में रहते हैं, क्यों अकेले रहते हैं, कोई प्यार नहीं बहुत सालों से क्यों नहीं मिलता? पहला रीज़न है टाइमिंग। यूनिवर्स, भगवान का टाइमिंग परफेक्ट होता है, उससे पहले अगर मिलेगा तो डेफिनेटली वो गलत होगा, खराब, रॉन्ग पर्सन मिलेगा, जो टिकेगा नहीं कुछ भी, इसीलिए टाइमिंग लेट होता है, एक बात। दूसरा बात है, हम लोगों को तैयार करते हैं भगवान, ये बात मैंने बहुत सारा व्लॉगों में बोला है। वॉट एवर पेन, सफरिंग, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, ठोकर खाते हम, गिर जाते, जो भी हम फेस करते हैं, रिजेक्शंस, प्यार में, कुछ ही चीज़ में जो भी हम फेस करते हैं, एक्चुअली इट इज़ प्रिपेयरिंग अस, मोल्डिंग अस फॉर आवर बेटर सेल्फ, ताकि हम फ्यूचर में और पावरफुल बन जाए। दुनिया इतना ठोकर खाए, इतना दुख मिले, इतना धोखा खाए, इतना रिजेक्टेड हुए, इतना डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में रहे कि अगर फ्यूचर में भी कुछ ऐसा होगा तो हम लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी विल नॉट केयर ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। वी विल बी सो पावरफुल, हम लोग इतना पावरफुल बन रहे हैं इतना ठोकर खा के। दैट इज़ द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, ओके। और पेशेंस हम लोगों के अंदर भगवान बढ़ा रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर में, इन लॉन्ग फ्यूचर में बड़ा सक्सेस हम अचीव करें। क्योंकि हम तो ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ों में लाइफ हम लोग फेस कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं ना, वही आपको तैयार कर रहे हैं टू इंक्रीज आवर पेशेंस फॉर आवर फ्यूचर बेटर सेल्फ, फॉर आवर फ्यूचर फाइटिंग एंड एवरीथिंग, ओके, टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। चलिए नेक्स्ट कार्ड क्या आते हैं, बुल, नंदी कार्ड, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसूट एंड पेशेंस, जिसके लिए रीडिंग है आपको हम बोल रहे हैं। आप जो अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, एनीथिंग, और भी पेशेंस चाहिए आपको, धैर्य रखना है, और भी धैर्य रखना है। एंड योर स्पिरिचुअल परस्यूट्स, अगेन आई एम सेइंग, सी एक कार्ड का, नंदी का कार्ड है ये, बुल, शिव वाहन, नंदी, शिवा एंड नंदी। पेशेंस बढ़ाइए, आपको और धैर्य की ज़रूरत है। आई फील टू से यू, जिसके लिए रीडिंग है, आप धैर्य बढ़ाइए, आप पेशेंस बढ़ाइए, ठीक है। यू इंक्रीज योर मोर धैर्य, पेशेंस इन योर लाइफ। You have patience but increase more. The way of life which you want, it will take some time, okay? It's not within 1 year, but it will take some time. You need to increase your inner patience power. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या रीडिंग आते हैं। Seize the moment, execute your plans for success. आपके मन में जॉब या करियर को लेके, लाइफ को लेके, लव या मैरिज को लेके जो भी है, आपको पहले से बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करना होगा। डोंट डू द प्लानिंग ऑन द मोमेंट, ऑन द स्पॉट। लिटिल बिट मन में प्लानिंग करके रखना होगा। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट द टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। अगर पास्ट में भी ऐसा कोई प्लान मन में आया था, एनीथिंग प्लान केम अबाउट एनीथिंग ऑफ लाइफ, you please implement and execute right at the moment. This is the right time to execute those planning,
थोड़ा थोड़ा करके भी तुम प्लानिंग एग्जीक्यूट करो, इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, ठीक है। इसका मैसेज है। फिर आई एम सेइंग embrace positive outlook, seek solution not problems. प्लीज़ डोंट माइंड, हम नॉर्मली एज ए फ्रेंड के बोल रहे हैं। किसी भी एस्पेक्ट में, लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में, जॉब में हो, करियर में हो, लव में हो, प्यार में हो, लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में ऐसा कुछ है आपके लाइफ में जो आपके एटीट्यूड को थोड़ा दिखा रहा है कि आपका जो जो लाइफ में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, जिस भी एस्पेक्ट में, जिस भी क्षेत्र में, आपको थोड़ा एटीट्यूड में ध्यान देना है। मतलब किसी से बात आप कैसे कर रहे हो ऐसा नहीं, आप उस प्रॉब्लम को कैसे डील कर रहे हो, उसका एटीट्यूड, प्रॉब्लम डीलिंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, आप प्रॉब्लम लाइफ में कैसे सॉल्व करते हो, परिस्थिति हो, सिचुएशन हो, पर्सन हो, पीपल हो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप कैसे करते हो, स्टाइल ऑफ डूइंग दैट, स्टाइल ऑफ सॉल्विंग दैट सिचुएशन एंड प्रॉब्लम, उस पे ध्यान, उस वो एटीट्यूड में ध्यान देना है आपको। योर करंट सम एटीट्यूड may be contributing to further challenges in your life. Shifting towards a positive approach and focusing on finding solution will prove beneficial. आप कैसे लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कोई भी प्रॉब्लम, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, जो भी ये सब ठीक ठाक ही है। जैसे मैंने शुरू से रीडिंग किया है, यू हैव ए वेरी गुड क्वालिटी एंड नेचर टू मैनेज प्रॉब्लम, एनी सिचुएशन एंड गो अहेड इन लाइफ, ओवरकम दैट सिचुएशन। बट स्टिल ऐसा कुछ है, कुछ तो है जिसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। जब भी आप कोई सॉल्यूशन के लिए जाते हो, whenever you try to find any solution or to bring out any solution from yourself, स्टाइल ऑफ सॉल्विंग दैट, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट टू कार्ड्स क्या है वो देखते हैं। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। एक एनर्जी मुझे फील हो रहा है, हो सकता है रिसेंट में या पास्ट में आपके साथ कोई गलत कुछ किए हैं, जो ये रीडिंग करने के लिए बोला है उसके लिए हम बोल रहे हैं। कोई इंसान हो सकता है आपके साथ कुछ गलत किए हैं, जानबूझ के या इंटेंशनली या नहीं इंटेंशनली, ऐसा कुछ किए हैं, कोई बातें, कोई एटीट्यूड, कुछ भी, उसको फॉरगिव कर दो, ठीक है। आप फॉरगिव किए नहीं हैं अभी तक, इसके लिए आपका उसके लिए बहुत गुस्सा है उसके ऊपर। इफ़ यू फॉरगिव देन ओनली आप लिबरेट कर पाओगे फ्रॉम दैट एनर्जी। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रहा है अभी कि आपके रिसेंट में या पास्ट में आपके लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो आपके साथ कुछ गलत किए हैं, जिसको आप आज तक फॉरगिव नहीं कर पाए, और वही आपको पेन दे रहा है, सफरिंग दे रहा है। प्लीज़ फॉरगिव कीजिए, ठीक है, फॉरगिव कीजिए, ताकि आपके लाइफ में उसके खराब याद ना रहे। एक एनर्जी रीडिंग है ये, ठीक है। लास्ट कार्ड क्या निकालते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, लाइक लास्ट कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड आया है। आप ऐसा व्यक्ति हो जो ये रीडिंग मुझे करने के लिए बोला है, उसके लिए आप बहुत सैक्रिफाइस किए हो आपके फैमिली के लिए। यू सैक्रिफाइस मेनी थिंग्स फॉर योर फैमिली, डेफिनेटली, ओके। सो हो सकता है कि आपके अंदर ऐसा नेचर है कि आप खुद के लिए उतना नहीं सोचते हो, मतलब सोचते हो, लेकिन आपने फैमिली के लिए बहुत सैक्रिफाइस किए हैं, कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस किए हैं आपने। कभी कभी खुशियाँ, हैप्पीनेस आपने सैक्रिफाइस किया फॉर योर फैमिली। कभी कभी लोगों को, इंसान को करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस वाज द शिवा ओरेकल कार्ड रीडिंग। एक और हम रीडिंग करेंगे आपके लिए, एक स्मॉल कार्ड है, इट्स लाइक सम पॉजिटिव एनर्जी एंड वाइब्स का कार्ड है ये। कुछ मैसेज आते हैं इस कार्ड्स के माध्यम से, चलिए देखते हैं। व्हाट्स फॉर योर 1 year अपकमिंग गाइडेंस। बैलेंस, ठीक है। बैलेंस बिटवीन ईच एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। You are the master of your daily life. Again, I'm telling, again the same message came. Whatever puja and rituals you are doing, correct, try to be very sensitive and cautious. Everything is
in a proper way you are doing or not. Try to take care of your physical body. Fulfill your body and soul needs. Fulfill your body and soul needs. Okay. Next, see what cards comes. I'm shuffling the cards. It's all. Oh, okay. Inner strength. Inner strength. Okay. Um, e- Try to find confidence in your mind. Increase your confidence power. Tell yourself you can do anything. All the power is within your mind, within your body and mind and soul. Okay. Believe that most of the spiritual power and every power, the power with which we human move ahead in life, we deal problem, we fight in life, we achieve success, there is a power, human power. That power is within you, within your mind, body and soul. It's not external, it's inside. Okay. Next. Next. Guidance. Believe fully in God. Okay. uh, as a human, sometimes it comes to all human mind कि we do this much puja, this much rituals and fasting, still our life is same. It's never, years after years, same. It's not moving a single bit to a better position. It will come, it this feelings comes. Okay, but remember, before right time nothing comes, because that right time is very important. Okay, before that if it comes, it will not stay. It will be proven wrong and all wrong things. So guidance, if you feel you need to take some help or guidance from doctor, from spiritual person, from a friend like me as a who little bit do tarot and astrology and spiritual guidance, open free and ask the help. Okay, don't feel shy and all this. If you need any life guidance, spiritual guidance, any guidance from any doctor, anything related guidance, anything life related guidance, feel free to take and ask and take that guidance. Don't feel ashamed. It's a very important message came. Okay. Next, coming here and now. Don't overthink about your future. Whatever is going on right now, at the moment, at present moment, enjoy that. Go ahead with that. Go with the flow of the time. Let's see what will happen after 1 year or 2 year. Like whatever is going on in the present, enjoy that present scenario, present everything. Don't overthink about future and everything. Like have some planning in your mind about I want to do this and that. I want to improve my life, career wise, love wise, marriage wise, this and that and that. Okay, but not full, not overall full planning and everything. Little bit of. Okay, but present moment situation, enjoy the life. For you at present moment there is no danger. Okay, when your soul is ready, everything will happen naturally to you, with you. Okay, believe in that thing. Let me see again what comes. Positive action. Try to find the power, the strength, the beauty in yourself. Okay, enjoy your present moment, enjoy your present work, job, present everything. Enjoy what you cannot change, you give it to God. Anything which is beyond our hand, beyond our power, let us give it to God. This is very important. Okay, positive action. Some message which you need to follow. Okay, and I'm doing this card reading. Choice. You must rise above fear. You must choose happiness. Don't I It's a guidance. Okay, just card guidance. Don't quarrel. Don't quarrel.
Don't argue, don't explain to any person anything about you. You just choose happiness. Try to choose happiness only, okay? Okay, last card I'm choosing. Shining light. Your fear gets converted to strength. Love yourself, accept your soul. Every human have a any good thing, any goodness in any human is like divine light within that human, okay? So believe in that, shine light, okay? Just general some message for your life guidance I'm giving you, okay? So for today this much. I feel you got some message and informations. uh, मुझे जितना फील हुआ, जितना एनर्जी फील हुआ, हम उसके हिसाब से थोड़ा एक रीडिंग किए, थोड़ा स्मॉल रीडिंग था ये। अपकमिंग 1 ईयर में थोड़ा कुछ गाइडेंस हम दिए, कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने के लिए हम आई जस्ट शेयर माई फीलिंग्स, माई एनर्जी वाइल डूइंग दिस रीडिंग। ये गाइडेंस है, ये गाइडेंस है, ये चीज़ में आपको कंसंट्रेट फोकस होना है विद इन दिस 1 ईयर ओनली, ओके? आई होप यू लाइक माई वीडियो. If you have any questions, or if you want to do get any reading about anything, any problem in your life, anything, you can simply write in the comment, and I can read the comment and do that. Har Har Mahadev.